Hello student, myself Dr. Vikas Kumar Jangu, Government National College Sirsa. Today we start the second unit of first paper, and the first chapter of second unit is nitrogen metabolism. Now we start the nitrogen metabolism. About 78% of atmosphere around the earth consists of elements and molecular nitrogen. The nitrogen is chemically inert, therefore, in spite of its abundance, it cannot be used directly in the metabolism of the plant because the nitrogen is formed in the dinitrogen form. In dinitrogen, the two atoms of nitrogen are jointed by a exceptionally stable covalent bond, and the higher plant do not possess any enzyme that break this nitrogen in the usable form. So for the use of the nitrogen, first of all it is converted into the usable form, and this usable form can be absorbed by the plant. What is the role of nitrogen in plants? The nitrogen is a major substance in plant next to the water. It is the building blocks. It consists the nitrogen is constitute element of chlorophyll, cytochrome, alkaloids, and many vitamins. The nitrogen is also found in the DNA and RNA. You know that the DNA have ribose, DNA has adenine and purines. The adenine is purine are the nitrogen bases that are made up by the nitrogen. So the nitrogen is plays important role in metabolism, growth, reproduction, and heredity. वट इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है. मैंने आपको शुरू में बताया था. इन फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट 78% gases in atmosphere is nitrogen, but it cannot utilize in the form of dinitrogen by the plants. But some bacteria, blue green algae, leguminous plant have ability to utilize this dinitrogen. It is converted into a usable form, that is the nitrates, nitrites, and ammonia. The nitrate is the chief form that is used by the plant. The amino acid in soil are all many soil organisms use these forms. Higher plant can also take by the higher these amino acid in the soil. The organic nitrogenous component in insects, insectivorous plants can utilize these insects एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. तो जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी. इसके अलावा सोयल के अंदर जो होता है नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया के फॉर्म में पाई जाती है. प्लांट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं? नाइट्रेट्स को. अमोनिया, कुछ एमिनो एसिड्स जो होते हैं जिन जो सोइल्स में पाए जाते हैं वो भी कुछ सम हायर प्लांट जो हैं वो यूज़ करते हैं. जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं जैसे नेफेंथस, वो क्या करते हैं? दैट कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उनसे फिर वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं. तो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन. I can say that the some bacteria or leguminous plants have ability to fix the nitrogen into a usable form. This process is called the nitrogen fixations. So today we start the first chapter of nitrogen metabolism is the nitrogen fixation.
कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में होता है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है और इसका कैसे फिक्सेशन होता है और कैसे इसका, तो इसके अंदर दो मुख्य चीज़ें होती है। फर्स्ट चीज़ तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और सेकंड जो होता है वो होता है, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकंड होता है बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपके ये कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उस बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप वही लिखोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, कौन इसको करता है, और किस प्रकार से नोड्यूल्स जो इसके अंदर बनते हैं वो सारे के सारे बनते हैं। दिस पोर्शन इज इंक्लूड इन द बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो क्या होता है, व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। द नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है इन द फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन, कि इसके दो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। बट इनका प्लांट्स यूज नहीं कर पाता। क्यों नहीं यूज कर पाता, कि प्लांट्स के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो एंजाइम है वो उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ों में क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम आर एबल टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल of nitrogen in nitrogenase, and it convert this dinitrogen into a usable form. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम क्या कहेंगे, द कन्वर्सन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस साल्ट टू मेक इट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन। और वी कैन से दैट द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन of reduction of free molecular nitrogen or dinitrogen of atmosphere into nitrogen components that are readily available to the plant, and it can take place by natural agency, by industry process, by biological mechanism। कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस साल्ट में बदलने का जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। The nitrogen fixation is two types. First is non-biological nitrogen fixation and second is the biological nitrogen fixation. The non-biological nitrogen fixation is that fixation in which the nitrogen is converted into nitrogenous salt without any ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन साल्ट में बदलता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन बायोलॉजिकल्स। और एंड सेकंड इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द फिनोमिना इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कन्वर्ट द nitrogen into nitrogenous salts. This biological nitrogen fixation is two types, non-symbiotic and symbiotic. The non-symbiotic are the organisms which are found in the root soil, and in soil they convert the nitrogen in the usable form. And in symbiotic nitrogen fixation, the organism that convert the nitrogen in nitrogenous salts is live with the plants. सिम्बायोटिक्स में क्या होते हैं कि जो ये यूजेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट के साथ ही पाए जाते हैं, प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है कि इस प्लांट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म से क्या लेगा, नाइट्रोजन लेगा, और जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो नॉन बायोलॉजिकल में होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बायोलॉजिकल में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, कुछ भी हो। बायोलॉजिकल दो तरह के होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक की ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं होते ऑर्गेनिज्म, ये सोयल में ही सीधे पाए जाते हैं। और सिम्बायोटिक मतलब ये प्लांट्स के साथ, प्लांट की रूट में ये क्या या स्टेम में ये क्या होते हैं, उनके साथ रहते हैं और वहां पे ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं।
In non-biological fixation, the microorganism do not take place. Any living organism not involved in the fixation of nitrogen. In during the rainy season, जब rainy season होती है उस टाइम क्या होता है that is the nitrogen and oxygen that are found in the atmosphere during the lightning, they are converted into the nitric oxides. And when the this nitric oxide again oxidation by the oxygen and form the nitrogen peroxide. And this when the rain or comes, the water is associated with the nitrogen peroxide, and it form the nitric acids or nitrous acids. And this nitric and nitrous acids are associated with the calcium or potassium and form the calcium nitrite or calcium nitrate. And this calcium and nitrate and calcium nitrite are reach the earth along the raindrops as the acid rains, and in the soil these acid react with the alkalis to produce water soluble nitrites and nitrates. So this is called the फिजिकल फिक्सेशन, इसे हम फिजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं. ओनली द 10% ऑफ फिक्सेशन इज डन बाय दिस फिजिकल मेथड्स. तो समझ आ गया होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग से जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं. ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है NO, ये इसका फिर ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है. जब रेन आती है तो रेन में वाटर के साथ मिलकर ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो नाइट्रिक एसिड्स है ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट बना लेता है. और ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये वाटर के साथ लैंड पर सोयल के अंदर आ जाता है ड्यूरिंग द एसिड रेन. इसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन इज कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन. अबाउट 10% ऑफ फिक्सेशन इज डन बाय दिस मेथड्स. सेकेंड होता है इसे इट इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल फिक्सेशन. इसे फिजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं. सेकेंड होता है केमिकल फिक्सेशन. केमिकल फिक्सेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग ए इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस होता है हार्बर वॉक्स प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है. कि इंडस्ट्री के अंदर हार्बर वॉक्स मेथड के द्वारा अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द केमिकल फिक्सेशन. तो दीज आर द नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन. नाउ वी स्टार्ट द बायोलॉजिकल फिक्सेशन. The fixation of atmospheric nitrogen into the nitrogenous salt with the help of microorganism. This type of fixation is called the biological fixation. इस प्रकार का फिक्सेशन जिसके अंदर कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है उसे हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं. ये दो तरह का होता है. फर्स्ट इज द सिम्बायोटिक एंड सेकेंड इज द नॉन सिम्बायोटिक. In non-symbiotic nitrogen fixation, the fixation is carried out by free living organism that is found in the soils. कि soil के अंदर जो free living microorganisms होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है दैट आर द एरोबिक, एनारोबिक और ब्लू ग्रीन एल्गी. जो बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स कहते हैं दैट आर द फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया. इसका एग्जांपल है एजेटोबैक्टर वेजिरकिया. सेकंड है फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम. फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इज द क्रोबियम रोडोस्यूडोमोनास. एंड फ्री लिविंग केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इज द ड्यूसल्फो विब्रियो और थायोबैसिलस. दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Second is the symbiotic biological nitrogen fixation.
The fixation of free nitrogen by organism in soil living symbiotically inside the plant. The symbiosis word is coined by the D. Very. The mean of symbiosis is the living of two organism is and the symbiotic association, both the organism are living together and both are benefit to each other. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, कि जिसके अंदर दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ साथ रहते हैं और दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं. दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इसके 3 कैटेगरीज होते हैं. फर्स्ट इज द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनेस प्लांट, नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड नॉन नोड्यूलेशंस. ये 3 कैटेगरी होती है सिम्बायोसिस की. एक तो वो जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में नोड्यूल्स बनाते हैं, एक वो जो नोड्यूल्स तो बनाते हैं बट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में बनाते हैं, और एक वो होते हैं जो नोड्यूल्स नहीं बनाते. So today we study the nodule formation in leguminous plants. 2500 species of family Leguminaceae, for example Cicer eritinum, chana, Pisum stivum, Matar, Cajanus, Cajas, Arachis, Hypogaea, produce root nodule with the Apis bacteria. This bacteria is called Rhizobium species. Rhizobium bacteria. This Rhizobium bacteria can form the nodule in the leguminaceae plants and it fix the nitrogen into ammonia. They fix nitrogen only inside the root nodule. कि root nodule बनेगी उसके अंदर ही राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और ये नहीं करता. The association provide the food and shelter to the bacteria and bacteria supply the nitrogen to the plant. So it is called the symbiotic. Symbiotic मैंने आपको बताया था कि जिसमें दोनों को बेनिफिट होता हो. तो प्लांट जो होता है वो उसको फूड और शेल्टर देता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जो होता है इसके बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है. Nodules may buried in soil even after harvesting and continue the nitrogen fixation. जब तक नोड्यूल्स का हार्वेस्ट नहीं होता तब तक वो क्या करती रहती है, नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं. व्हाट इज राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या होता है? इट इज ए ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया and it show a degree of specificity. The two partner bacteria and host recognized by chemical substance lectins, that is the phytoagglutinoins. It is a carbohydrate containing plant प्रोटीन. कि ये ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो सोयल के अंदर फ्री लिविंग रहता है. ये ध्यान रखना भी कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है और एरोबिक बैक्टीरिया होता है. पर जब ये नोड्यूल्स, ये देखो, जब ये नोड्यूल बना लेता है तो ये तभी जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एन एरोबिक कंडीशन में होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है दैट कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल एन एरोबिक कंडीशन के अंदर ही फंक्शन करता है, कि अगर वहां पे ऑक्सीजन होगी तो वो फंक्शन नहीं करेगा. Now we start the formation of root nodules in leguminous plant. The root nodules form due to infection of rhizobium bacteria that is free living in the soils. The free living bacteria grow near the root of legumes unable to fix in free conditions. जब ये फ्री कंडीशन में होते हैं तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते. Roots of the legume secretes some growth factor हेल्प इन फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. कि ये जो रूट नोड्यूल, रूट जो होती है जिसके चारों ओर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो रूट इस तरह का एक फैक्टर रिलीज करती है जिनसे जो लेग्यूमिनेसी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, उसमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो संख्या में ज़्यादा बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाइसम स्टाइबम दैट सेक्रेट्स होमोसिरिन.
इट इज़ आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स लैक्टिसिन ओवर देयर सरफेस की जो पाइसमस्टाइबम होता है वो होमोसिरिन रिलीज करता है अपनी रूट्स के ऊपर, जिससे ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है। ये होमोसिरिन ये एक तरह का लैक्टिन्स है। लैक्टिन्स मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड कंटेनिंग प्रोटीन, जिनसे क्या होता है इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है राइजोबियम का वो ज़्यादा हो जाता है। कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है फ्री सोयल के अंदर होता है और ये जड़ों के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। जब पाइसमस्टाइबम होमोसिरिन रिलीज करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। This homoserine is help in recognition and attachment of rhizobial cell। ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन करवाता है, इसको रूट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो उससे अटैच हो जाते हैं। द राइजोबियल सेल हैव कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस। कि जो ये राइजोबियम सेल्स जो होती हैं इनके चारों ओर कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये इनको पहचान लेती है। द लैक्टिन्स इंटरेक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर ऑफ राइजोबियल सेल। कि देखो ये लैक्टिन्स रिलीज करते हैं। लैक्टिन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जब इसे कार्बोहाइड्रेट दिख जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर इससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिससे जो राइजोबियम सोयल में फ्री लिविंग घूम रहा था वो रूट के अटैच में आ गया। occurs between and this interaction is occurs between root hairs and young root hairs। कि जो root hairs होते हैं जो उनमें ये क्या करते हैं, आके ये अटैच हो जाते हैं। now bacteria enter the roots through soft infected root hairs। अब बैक्टीरिया इसमें इंटर करने लग जाते हैं इस रूट हेयर के अंदर। the tip are deformed and covered। इस तरह ये इंटर करते हैं कि इनकी टिप जो है वो डिजोल्व नहीं होती है और अंदर की ओर कवर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। ए ट्यूबुलर इन्फेक्शियस थ्रेड इज फॉर्म्ड इन द रूट हेयर सेल एंड बैक्टीरिया इंटर इन इट। कि क्या होता है, देखो मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये होमोसिरिन रिलीज करेगी। होमोसिरिन एक तरह की लैक्टिन्स होती है। लैक्टिन मतलब जिसके अंदर ऐसी प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सोयल के अंदर फ्री लिविंग है। बैक्टीरिया के ऊपर क्या पाए जाते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को पहचान के और जो रूट हेयर होते हैं उनसे अटैच हो जाते हैं और अंदर की ओर कवर्ड होके एक ट्यूबुलर इन्फेक्शियस थ्रीट बना लेते हैं और बैक्टीरिया इस थ्रीट में इंटर कर जाते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपने देखा होगा कि दैट इज द ये रूट हेयर है। रूट हेयर के चारों ओर सोयल पार्टिकल है और बैक्टीरिया है। ये सोयल रूट हेयर जो है ये होमोसिरिन रिलीज करती है, लैक्टिन्स रिलीज करता है, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स होते हैं वो इनको पहचान के उनसे अटैचमेंट कर लेते हैं। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये जो रूट है ये अंदर की ओर कवर्ड होती चली जाती है। After the entry of infectious threads, new cell wall is formed. The tubular infection contains mucopolysaccharides where bacteria embedded and start multiplication. It grows very much and reach the inner layer of cortex and the bacteria is released। कि जो ये इन्फेक्शियस थ्रीट होता है ये अंदर की ओर, जब मैंने आपको रूट हेयर था वो अंदर की ओर कवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो इनर कोर्टेक्स तक पहुँच जाते हैं। और इनर कोर्टेक्स पर पहुँचने के बाद में जो इन्फेक्शियस थ्रीट होता है ये फट जाती है और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनर कोर्टेक्स की सेल में रिलीज कर दिए जाते हैं। In inner cortex cells, it induces the cortical cell to multiply with result in formation of nodule on the surface। इससे क्या होता है जो cortical cells होती है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, टू मल्टीप्लाई करती है, जिससे क्या होता है नोड्यूल्स बनते हैं। And the bacterial cell multiplies and colonize in the multiplying host cell। जो ये multiplying host cell होती है cortex की उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। After host cell are completely filled with bacterial
द बैक्टीरियल सेल बिकम डोरमेंट एंड फॉर्म द बैक्टीरियोइड्स। जब ये होस्ट सेल पूरी भर जाती है तो बैक्टीरियल सेल्स आर बिकम डोरमेंट इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोइड्स। द बैक्टीरियोइड्स इज ए The bacterioids remain surrounded by the membrane now called the peribacterial membrane। कि बैक्टीरियोइड्स क्या होते हैं? बैक्टीरियोइड्स राइजोबियम बैक्टीरिया के ग्रुप्स होते हैं जो चारों ओर से पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। कि एक सेल के अंदर, एक कोर्टेक्स सेल्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में पाए जाते हैं, और ये ग्रुप्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय द पेरीबैक्टीरियल्स मेम्ब्रेन। और इनके बीच में क्या होता है? इट हैज, इनके बीच जो दैट इज द लेग हीमोग्लोबिन्स। द फ्लोट इन रेग हीमोग्लोबिन रेडिश पिगमेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियोइड्स, ये कोई बार क्वेश्चन पूछते हैं एक नंबर में, व्हाट इज बैक्टीरियोइड्स? बैक्टीरियोइड्स आर द ग्रुप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन द होस्ट सेल एंड दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर कवर्ड बाय द पेरीबैक्टीरियल membrane, and between these peribacterial membrane the leg hemoglobins are floats, and the main function of this leg hemoglobins are the इट इज़ द स्क्वेंजर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का स्क्वेंजर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजनजिनेज एंजाइम होता है जो कि राइजोबियम में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे होगी तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है, जो रेडिश पिगमेंट होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इज रिजेंबल टू द हीमोग्लोबिन दैट इज फाउंड इन द ह्यूमंस और अदर मैमल्स। तो वो इसका फंक्शन क्या क्या होता है लेग हीमोग्लोबिन के? एक तो ये एफिशिएंट ऑक्सीजन स्क्वेंजर, कि ये ऑक्सीजन को वहाँ से हटाता है। इट मेंटेन द स्टेडी स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के लेवल को स्थिर रखता है। एंड इट इज आल्सो स्टिमुलेट द एटीपी प्रोडक्शन, और ये एटीपी प्रोडक्शन भी कराता है। द प्रेजेंट स्टडी इंडिकेट दैट लेग हीमोग्लोबिन इज नॉट एसेंशियल्स बिकॉज, अब ये भी माना जाता है ये एसेंशियल नहीं है, बट इट इज ए ऑक्सीजन स्क्वेंजर। The nitrogenous component synthesized is translocated through vascular tissue। जो नाइट्रोजिनस कंपोनेंट बनता है उसको किस में डाल दिया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू में। एंड द ग्रुप ऑफ राइजोबियम सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम द होस्ट सेल वॉल। बैक्टीरियोइड्स लैक फिल्म बाल और ऑस्मोटिक लाइएबल, कि जो बैक्टीरियोइड्स के चारों ओर बाल होती है, इट इज नॉट लैक फिल्म बाल्स, दैट इज द ऑस्मोटिकली लाइएबल होती है। ये ऑस्मोटिक इसके अंदर लाइएबल नहीं होता है। दिस डायग्राम, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो ये रूट होती है, ये रूट हेयर कवर्ड करके कहाँ तक पहुँचता है? द इनर कोर्टेक्स सेल तक। इनर कोर्टेक्स सेल्स के अंदर जाके ये जो थ्रीट होता है ये फट जाता है, और बैक्टीरिया किस में रिलीज हो जाते हैं? दैट आर रिलीज इनसाइड द इनर कोर्टेक्स सेल्स। अब इनर कोर्टेक्स सेल्स में क्या होगा? ये डिवाइड होगी, मल्टीप्लिकेट करेगी। डिवाइड होने से क्या होगा? रूट नोड्यूल्स बाहर की ओर क्या बन जाते हैं? रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। दिस पिक्चर आज आल्सो शो द formation of root nodules, that are the root hairs, rhizobium bacteria, a root threads are formed. This thread reach the cortex, and from the cortex cells are divided and form the root nodules. This is the picture of root nodules. So today we study about the first part of nitrogen metabolism. In this nitrogen metabolism we study about the biology of nitrogen metabolism। कि अगर आपके ये क्वेश्चन आ जाए, लाइक द बायोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तब आप ये सारा का सारा लिखे होगे। थैंक यू स्टूडेंट।